Good morning, friends. Welcome on this Sunday morning. We have a series of uh, talk show with super achievers. We call them as a true Atmanirbhar. They are hidden gems of our CA profession. We are featuring them one by one. We have featured till now seven. Today is our eighth super achiever, CA Omkar Nirudgarji. He has a fantastic journey. We'll discuss in the coming part. We have a CA Dr. Rajkumar Adukia sir, uh, past Central Council member for 18 long years, 1998 to 2016. Our torch bearer. How sir has handled this 18 years, it's really interesting to know. We will obviously talk with sir also one day regarding that this long journey of the Central Council of 18 years. And still, sir is a leading the profession in the other way, whatever best way possible. Still, sir is so much of young at heart and enthusiasm, and also nurturing the youngsters. So we welcome you on our show, sir, Rajkumar Adukia, sir. We Thank have you. a Shingare madam, regional council member of our WRC of ICI. Madam is always supporting to us, very sporty. Madam also taken part in our cricket tournament as well. We welcome you, madam, on our talk show. We have our co-host, our friend CA Vishal Bhai Gala with us. We welcome Vishal Bhai on our show. So before moving ahead with the Omkar ji's journey, just want to show to all about his journey in a nutshell. प्रवासावर समाजातल्या नजरांमुळे इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळे आहोत याची जाणीव वयाच्या 5व्या वर्षी झाली आणि जणू हे वेगळेपण सिद्ध करण्यासाठी साताऱ्याच्या ओमकारने आपली सकारात्मक वाटचाल सुरू केली. जन्मतः सेरेबल पाल्सी या आजारामुळे पीडित असलेल्या ओमकारला आपले पाय काही प्रमाणात निकामी असल्याचं जाणवलं. शाळेत जाण्यासाठी प्रयत्न करत असताना शाळेनंही शारीरिक अवस्थेमुळे प्रवेश नाकारला. मात्र नंतर नगरपालिकेच्या शाळेत प्रवेश घेतला आणि मग मात्र त्यानं मागे वळून पाहिलं नाही. शाळेतल्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये ओमकार आवर्जून भाग घेत होता. 10वी 12वी मध्ये चांगल्या मार्क्सनी पास झाल्यानंतर आयुष्यात आता पुढे काय करायचं असा प्रश्न ओमकारला पडला होता. मात्र चव्हाण सरांच्या सांगण्यावरून त्यानं कंपनी सेक्रेटरी होण्याचं ठरवलं आणि ते त्यानं यशस्वीपणे करूनही दाखवलं. सीए, सीएस, एमबीए अशा पदव्या घेऊन भारतातला पहिला सेरेबल पाल्सी सीए होण्याचा मानही त्यानं पटकावलाय. इतकंच दाखवलं. सीए, सीएस, एमबीए अशा पदव्या घेऊन भारतातला पहिला सेरेबल पाल्सी सीए होण्याचा मानही त्यानं पटकावलाय. इतकंच नाही तर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीत काम करणाऱ्या ओमकारला बेस्ट एम्प्लॉईज सेरेबल पाल्सी म्हणून राष्ट्रपती पुरस्कारानंही गौरवण्यात आलं. अजूनही आयुष्यात पुढे खूप शिकण्याचं, आपल्यासारख्याच विशेष मुलांसाठी, संस्थांसाठी काम करण्याचं ध्येय ओमकार समोर आहे. फक्त आपल्या पुरता विचार करून न थांबणारा ओमकार समाजाचाही विचार करत जिद्दीनं, चिकाटीनं अनेक नवनवी स्वप्न पाहत आपलं आयुष्य सुंदर करण्याच्या विचारात असतो. नकारात्मकतेवर मात करत ओमकारच्या याच सकारात्मक आयुष्य जगण्याला आमचा मनापासून सलाम. तर हा होता ओंकारचा आतापर्यंतचा प्रवास. ओंकार, So this is Omkarji's journey in a very brief. We will detail, we'll discuss in the coming show or in the days, I mean in the time to come. We have more attendees also, so we'll try to request attendees as and when you come across any question or kind of you want to ask anything or you want to talk, just post your queries in the question tab. So just want to tell you that Omkarji is not the only, I mean, first chartered accountant, but company secretary as well. He has achieved so much that President of India has called to give honor to him at President's house or President's office basically.
So we respect you, Omkar ji. Apart from that, he is a very much social also. Omkar ji has donated blood more than 50 times. So I am just counting in the morning that what is the year in that. So I think it's more than 10 years. Like we can have a every 3 months. So he is regularly donating blood as well to the whatever needy person or in the society as per the requirement and as per this. So so much of enthusiasm, Omkar ji. So before we start the conversation with Omkar ji, would like to request our guest, CA Dr. Rajkumar Adukia sir, to have a few words of appreciation for our today's super achiever, C. Omkar Nirgudkar ji. Over to you, Rajkumar sir. Thank you, Virag. Nice to see Shilpa, Vishal, and of course Omkar and dear participants. मैंने जो अपने जीवन में, मैं अपने आप को 6 साल का कहता हूँ, मैं 0 निकालना चाहता हूँ. I have completed 60 on 15th December 2019. तो हमारे जीवन में जो भी चीज हुई है 2 बार हुई है. पहली बार दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में. तो जब तक वो दिमाग में नहीं होगी, हम उसको कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो वो हमारे जीवन में कभी नहीं होगी. तो जब हम सोचते हैं तो हमें कोई लिमिटेशन नहीं रखना चाहिए. अगर मैं कहूं मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए, अगर मैंने सोचा है 6 महीने में चाहिए तो 6 महीने में आ जाएगा. नेपोलियन हिल ने एक किताब लिखी है, उसमें 13 प्रिंसिपल लिखे हैं. तो ओमकार, जो तुमने 2011 से 2020 में किया है, वो शायद मैंने मेरे 9 साल में नहीं किया था. मैंने 83 में मेरे सीए में फर्स्ट रैंक आया. और जो भी आज मैं अपने जीवन का, मैंने 60 साल में अपनी थोड़ी जीवनी लिखी है. मेरे पिताजी पड़ोसी से सब्जी मांग के खाना खाते थे. मैं स्कूल में 5 पैसा बचाने के लिए कालबा देवी की बादामबाड़ी चाल से ओपेरा हाउस मारवाड़ी विद्यालय में चल के जाता था. मैंने कॉलेज लाइफ तक क्रिकेट का बैट नहीं देखा था. तो भगवान आई एम पॉसिबल में Some disturbance, sir का connection lost हो गया due to some technical error. I think sir will join again in some time. So till that time, would like to request Shilpa madam to have a few words of appreciation for our super achiever Omkar Nirgudkar ji. Over to you, Shilpa ma'am. Yeah, thank you, Virag ji. First of all, thanks for inviting, because it's like, it's not only to talk about Omkar, but it's like I need to appreciate the efforts you all are taking to bring this hidden gems of the CA fraternity, and like showing their talent and their journey, and that itself is inspiring. So it's my privilege to be here and talking something about Thank you, madam. It's our pleasure. Yeah. And it's another pleasure. Yeah, I think Rajkumar sir is back. Okay, ma'am. So, Mic. sir, you are on mute, sir. Rajkumar sir, you have to, yeah. Now you can able to speak. नहीं, शिल्पा जी बोल रही थी, मैंने कहा पूरा करने दो, लेकिन ठीक है, मैं बोलता हूँ. Please, sir. और मैं अभी ओमकार सेशन लेता हूँ 96 आवर्स. मतलब भगवान ने हमें दिन में 24 आवर्स नहीं दिए हैं. अगर हम उनको चाहें तो 240 बना सकते हैं, 2400 बना सकते हैं. दूसरा, जैसे विराग बोल रहा था कि सर आपने 18 साल काउंसिल में कैसे निकाले, अभी मैं वापस काउंसिल का चुनाव लड़ने वाला हूं. अगर पैशन है, जैसे जब मैं चेयरमैन था WRC का, सुबह 5 बजे लोगों को फोन करता था, वो 10 बजे उठते होंगे, लेकिन आज उन्हें खुशी होती है. तो हमारे ऊपर है कि हम समय, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर 1 साल में कुछ नया सीखो, 6 महीने में सीखो. मैं अभी भी 4 डिग्रियां और दे रहा हूं. मैं MA में साइकोलॉजी कर रहा हूं. पिछले रविवार को मैंने LLM एनरोल किया है.
एक इग्नू का मैंने दूसरा एग्रीकल्चर पॉलिसी पे कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि हम भारत का एग्रीकल्चर इनकम डबल करना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत भी बनाना चाहते हैं, पहले खुद आत्मनिर्भर। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने जीवन में सीखी है ना, कि जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, हमारी बैटरी हमेशा 100% चार्ज होनी चाहिए, 100%। अगर मैं खुश हूं तो मेरे इर्द गिर्द मैं खुशी फैला सकता हूं। तो हमारा खाली बॉडी हेल्दी नहीं होना चाहिए, माइंड भी सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। तो हम जैसे MESS मैस है, मैं उसको बोलता हूँ MES अड़ुकिया कर दो। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, साउंड स्लीप, और A फॉर आहार, focus on your food, and then on the mind, then everything will fall in place. So wish you best of luck, and we can do wonder if we have a passion। जैसे थॉमस एडिसन, वो 1000 बार फेल हुआ उसके आविष्कार, तो उसने क्या कहा, एवरी टाइम आई एम कमिंग टू नो विच फॉर्मूला डू नॉट वर्क। जैसे विराग ने कहा, मैं 18 साल सेंट्रल काउंसिल मेंबर था, तो मुझे पता चला कि ठीक है, आप काम करते जाओ, और आपको भगवान ज्यादा साल इसलिए दे रहा है, जैसे पास्ट प्रेसिडेंट एलिजिबल ही नहीं होता है रिकंटेस्ट करने के लिए। मैं एलिजिबल इसलिए हूं कि मुझे भगवान बोलता है तुमको ज्यादा काम करना है। थैंक यू विराग, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सी दिस सुपर अचीवर्स। Thank you, sir. Thank you. It's our pleasure, sir. Thank you so much. So now I would like to request Shilpa madam to have a few words of appreciation for our super achiever, Omkar Nirgodkar ji. Yeah, so it's my privilege to share the screen with CA Doctor and Advocate Rajkumar Adukia sir. He's my mentor as well. Today I'm in council just because of him, because I worked with him almost for 3 years in central committee, CCO, NPO committee. And he always used to say there should be fire in your belly. And same thing I think that happened with Omkar. Omkar, तुमच्या नावातच ते एक शक्ती आहे, फोर्स आहे, फियर्स अप्रोच आहे. ओमकार इटसेल्फ, राईट, दॅट रिमाइंड्स अस अबाउट शिवशंकर. तर त्याच्यामुळे नावातच तुमच्या तो एक फोर्स आहे. अँड यू आर प्रूव्ड, आय मीन, I should say that you yourself is an inspiration to all the chartered accountants, because you are I mean extraordinary in the sense you are blessed with few qualities which the other professionals or maybe a common man he is not having. So it's like you are blessed with that self confidence, that self belief, that trust in yourself, that passionate approach, and yes, I can do anything. So I think that gives you courage, and you should have the courage also to face the challenges, right? And it should not go to, I mean, whatever challenges we are facing, that is what I feel, whatever challenges we are facing, we should not take it to heart, we should take it to mind. As Adukia sir was talking, it should be in your mind, because he always keeps telling, once mind में वो register हो गया. And another thing what he used to tell me also, or like whatever you want to do, आपको अगर कुछ करना है, आपने कुछ फोकस किया या दिमाग में कुछ सोचा है कि ये मुझे करना है, तो ये आप ओपनली एक बार बोल दो. just tell that thing to the world, so then that will remind you, अरे ये मैंने तो ये बोल दिया कि ये मुझे करना है. so then वो आपको रिमाइंड करते रहेगा, और वो अपने आप में आपको एक कमिटमेंट आ जाता है. and then वो respond now, I mean you are now responsible to prove yourself. So once you take the decision, as Ratan Tata also says, once you take the decision, you have to prove that the decision is whatever decision you have taken is the right decision. So I think like I've seen your qualifications, your the awards you have received. I mean, it's hats off to you. And rather than Atmanirbhar, I feel you are the real hero. You are the role model for all the young brigade and the chartered accountants of our fraternity. And like you made us feel proud. The entire CA fraternity is feeling proud on you, Omkar. And keep rocking, keep exploring all the good things. And yes, you are a blood donor also, so that also shows that you have that inner feeling of giving back to the society. That CSR approach, as the good word, or the bonus नाव आपण त्याला देतो, CSR. So you are doing that also. So on social front also you are so active. So I mean, my best wishes to you for your future journey. Just keep rocking. You are an amazing person, right?
and you are going to mark your presence, and I mean, yes, I'm there. So that I think that word impossible is also not there in your dictionary, because impossible says I am possible, and you've proved it. Yeah. So all the best to you. God bless you. Thank you. Thank you so much. Very wonderful, madam. He is a real gem. He is a role model. We'll also ask him how he felt while President of India called him or honored him during the in the year 2016. Pranav Mukherjee sir, when president and he's called you, we'll ask them also. So any participant also has any question, so they can also post in the question tab. We will take it later on. So now coming directly to Omkar ji, all are waiting to listen from Omkar ji now. So would like to ask about your journey from the childhood, like when you felt first time that there is something different than the normal person, and how you reacted it, or how your family your supported you at that time. Mic, audio. ओमकार जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. थोड़ा सा इश्यू अभी भी आ रहा है, आवाज हम नहीं सुन पा रहे आपका. नहीं येते, आवाज नहीं येते. ओमकार जी आप मोबाइल से लॉगिन कर लीजिए, वहां से हम सुन लेंगे. ओमकार, meanwhile you can opt one thing. आप ऑडियो के इसमें जाइए, जहाँ पर कंप्यूटर ऑडियो, वहाँ पर फोन कॉल सिलेक्ट कीजिए, and then again select computer audio. That might work. Okay. Now you are audible. Yeah. आ रहा है, आवाज आ रहा है आपका. Hello, is it? Hello. Yeah. Now it's. ओमकार. हाँ. Sorry for the disturbance. पहले तो मैं डॉक्टर अडुकिया सर, विशाल जी एंड पूरी कनेक्ट इजी टीम का आभारी हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड तमाम पार्टिसिपेंट का भी थैंक यू करता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं. दूसरी चीज, अभी ये जो विराट जी ने बोला कि फर्स्ट व्हाट यू फील, ये चीज क्या है, तो आप जान पाओगे कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो कम रोता है फॉर माइक्रो सेकेंड्स, एंड सम पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड अदर पार्ट इज लाइक गाय लाइक मी. तो मेरे इसमें मैं बहुत लकी मुझे समझते हैं कि फर्स्ट तो ये सेरेब्रल पाल्सी होने के बावजूद, बट चलते हुए भी मैं स्टिक लेके चल सकता हूँ, बट ब्रेन इज वेरी इंटैक्ट, एंड विथ सम एफर्ट्स आई कैन स्टडी एंड आई कैन गो. बट दैट इज वन थिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट. पता चला कि मुझे सेरेब्रल पाल्सी है एंड मैं चल नहीं सकता या फिर कोई कमी है, उसके बाद ये ब्लेसिंग्स जो है उसके कर सकते हैं. तो स्टडी एंड फर्स्ट टाइम आई हैव, मुझे जो याद है जब फर्स्ट टाइम मुझे एडमिशन लेना था, तभी ये मेरा नॉर्मल कोर्स, बिकॉज उस टाइम ये फिजिकली हैंडीकैप ये सब अच्छी चीजें होती थी कि अरे हाँ तुम्हारा बेटा फिजिकली हैंडीकैप है तो अच्छा है, मतलब भगवान ने तुम पे ऊपर कुछ गलत किया है या फिर. ओमकार जी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अभी भी आ रहा है आपका बीच बीच में, तो आप मोबाइल में एक बार लॉगिन कर लीजिए, तो वहां से ऑडियो आ सकता है. मोबाइल में आपके GoToWebinar ऐप में आप एक बार लॉगिन कर लीजिए. सो तब तक यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो. हाँ जी बताइए. हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है, तो मोबाइल में कंटिन्यूअस मैसेजेस आ रहे हैं जो मतलब मेरे दोस्त हैं. ओके. आवाज आ रहा है?
हाँ आवाज आ रहा है लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में कट रहा है, तो अगर मोबाइल में भी लॉग इन कर लोगे तो बेटर रहेगा, वहां से ऑडियो अच्छा। क्लियर रहेगा। एक मिनट। आप दिमाग से निकाल दो कि आपके दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, वो तो बाद में भी आप देख सकते हो। तो एक्चुअली इट इज नॉट क्या मैं कॉल कर सकता हूँ किसी नंबर पे और कॉल हो जाएगा? इट इज नॉट कनेक्टिंग एक्चुअली। कॉल से नहीं होगा, कॉल से नहीं होगा, आपको वहां से वो उसमें ही करना पड़ेगा। करके दैट ऐप इज सेइंग मैं ज्वाइन कर दिया है। हेलो। हाँ ओमकार जी आप बोलिए, अभी आप अनम्यूट कर दीजिए उसमें और आप बोलना स्टार्ट करिए। अनम्यूट योरसेल्फ इन मोबाइल। हाँ हेलो। हाँ नीचे रखिए मोबाइल और कंटिन्यू करिए, अभी परफेक्ट आ रहा है। ओके ओके। सो थैंक यू एवरीवन फर्स्ट। हाँ जस्ट एक कंसर्न था कि आप है ना सेरेब्रल पाल्सी का मतलब भी समझा दीजिए लोगों को, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। Okay. Cerebral palsy. Cerebral palsy is a rare disorder. I cannot say disease. It is a 2 to 3 people in 1,000. So we are a rare breed. What happens? When the child is born, it cries, and sometimes it happens. Many reasons like premature baby, forced delivery, or something like that. The child doesn't cry for some microseconds, and some centers in the brain get affected. Then that affection of center get affected your body. In my case, my legs are affected. If you see the worst part of cerebral palsy, it is a mental retardation, and it is the best part of me is me. So cerebral palsy doesn't affect your intellectual growth पॉजिटिवली, बट अगर आप मेंटल रिटार्डेशन की तरफ जाए तो दे हैव नो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी, बट in some cases the brain remain intact. So because of that blessing I can study, I can think, and I am just a normal person with some abnormal body. तो जब आपने जो ऐसे पूछा कि सेरेब्रल पाल्सी जब पता चला उसके बाद क्या हुआ, तो वो तो मतलब बात की बात है। जब ये पहले बर्थ होने के बाद ही आई वाज ऑन कंटिन्यूअस मेडिकेशन, वेंटिलेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड डॉक्टर वाज सेइंग कि हाउ दिस बेबी विल लिव वी डोंट नो। तो मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा का, मुझसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा का स्ट्रगल वहां से शुरू हुआ कि ये जिंदा रहना चाहिए और ये अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस, ऑपरेशंस हुए, एंड उसके बाद अभी जो मैं आपको दिख रहा हूँ CS, वैसे जर्नी स्टार्ट हुई। जी ओमकार जी, तो हम समझ का पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनको भी इनवाइट करेंगे लास्ट 10-15 मिनट में, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। उनकी जर्नी उनसे बहुत नजदीक से दिखी हुई है, they are very close to you, and how you have developed your ability and entire skill set, and how you got the qualification, so many qualification. So we'll also listen from them. So just want to ask at present, what is about your schooling? आपका childhood and the schooling. Can you please describe about that, how you felt, and in which school you taken your education? The role of your school in your development. Yes, मैं ये बता मतलब स्कूल सबके लाइफ में भी खास होता है,
एबल हो डिसेबल हो, बिकॉज वहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको मिलते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं, मतलब देर इज नो क्या बोलते, देर इज नो पर्सनलनेस और कुछ स्वार्थ नहीं होता। तो मेरे को जैसे हर एक डिसेबल के साथ होता है, आई थिंक मेरे को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, तो इट वाज कि वेरी डिसीजन डिफिकल्ट हुआ होगा। हाँ यस, बिकॉज देयर इज टाइम कि लोग ऐसा सोचते थे कि एक डिसेबल्ड अगर आपके घर में है तो यू कैन लिव विद दैट, बिकॉज इट इज दैट पार्ट की ऐसे होता ही है, हमने कुछ किया होगा तो इसके लिए वो होता है। तो नॉर्मल स्कूल में तो एडमिशन नहीं मिल रहा था, बट स्पेशल स्कूल वाज नॉट ऑप्शन फॉर माय पेरेंट्स, दे हैव ट्राइड एंड अपने सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल गया। On the basis of that कि one of my parents will stay there for the school period. So my mother used to stay from 10 to 5 till I am 5th to the school, just because कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फॉर्चुनेटली मुझे कुछ नहीं हुआ, उल्टा अच्छे दोस्त मिल गए, बट she has to stay for that school record. She has to do some every activity before my schooling and after coming home, but for 5 years, 5 6 years she has to stay. Then they have confidence कि इसको कुछ नहीं होगा because of my grades was very good at that time. So they said कि it is a very intelligent child and now we are confirmed that कि उसको कुछ नहीं होगा, वो किसी को कुछ नहीं करेगा, and we will continue the without your presence. राइट राइट। सो आपको गवर्नमेंट स्कूल में आपका एजुकेशन हुआ, सो पूरा एजुकेशन वहाँ आपका 10th तक वहाँ पे हुआ है, एम आई राइट? हाँ यस, नहीं 10th तक नहीं हुआ, उसके बाद 7th स्टैंडर्ड आई थिंक, 5th स्टैंडर्ड, उसके बाद हमने घर शिफ्ट किया, तो घर से एक स्कूल नजदीक नहीं था जो पुराना वाला था, तो उसके बाद हमने शिफ्ट किया, द स्कूलिंग वाज शिफ्ट टू अनदर स्कूल। टिल देन माय परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, सो स्कूलिंग मतलब स्कूल हैज एक्सेप्टेड मी, टिल देन दैट सर्कुलर हैज कम कि फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट को आपको लेना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस ऑन ऑल दैट, ऑन दैट बेसिस दे हैव एक्सेप्टेड मी। Okay, very good. So when you completed 10, how you decided to take a commerce field, or when you thought about the commerce background and the CA journey? If you can describe in brief. यस, जब मैं 10वीं क्लास में था तो वी हैव टू डिसाइड कि कॉमर्स लेना है साइंस लेना है, तो मेरा भाई साइंस ग्रेजुएट है, तो हमने सबने डिसाइड किया कि मैं कॉमर्स लूंगा, क्योंकि आई हैव सीन दैट कि वो साइंस में क्या क्या करना पड़ता है, तो आई वांट अ गुड एजुकेशन एंड ऑल दैट, तो हमने डिसाइड किया कि कॉमर्स लूंगा। वहाँ पे एक सर थे जो सीए थे, जो गेस्ट लेक्चर करके आते थे, तो ही यूज्ड टू कम बाय कार and they have to respect, they have all the respect for him कि बड़े सीए है and he is मतलब रोल मॉडल फॉर एवरी कॉमर्स स्टूडेंट कि अगर सीए बनना है तो इनके जैसे बनना है, कार लेके आना है, 2 घंटे सिखाना है, चले जाना। तो दैट वाज द सेम रोल मॉडल फॉर मी, ही इज मिस्टर जेबी चौहान, तो ही इज वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि सर मैं तो बीकॉम करूंगा and then I will do some GDCA and all these things and I will get a job. तो बोले कि why you are becoming compounder, if you are a capability of a doctor, don't become a compounder. तो वहां से मेरी सीए की जर्नी शुरू हुई। हेलो हेलो, का भी बहुत बड़ा रोल रहा आपको गाइड करने में, और Yes. आपकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। तो आपको सीए जर्नी में आर्टिकलशिप में जो अपना आर्टिकलशिप कंपलसरी होता है, वहां पे आपने क्या स्ट्रगल फेस किया? कभी आउट स्टेशन ऑडिट रहता है सीए में, Yes. कभी आपको विद इन लोकल आल्सो इन मुंबई यू हैव टू ट्रैवल बाय मुंबई लोकल एंड अदर थिंग्स। तो वो सब आपने कैसे हैंडल किया, और हाउ यू मैनेज, और how the principal or other colleague supported you in your articleship journey? फर्स्ट मैं तो ICSI जो भी सिस्टर कंसर्न है उनको बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कंसिडरेशन किया। ओमकार जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, थोड़ा सा
आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। या परफेक्ट। हाँ तो पहले तो मैं ICAI ICSI जो मेरे मदर इंस्टीट्यूट है, दोनों को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मतलब पॉलिसीज बनाए या फिर हैंड एक्सटेंड किया कि ये फिजिकली हैंडीकैप है, फिर भी हम उसको सारे पॉलिसीज या फिर फैसिलिटीज देंगे। तो पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज, जब मैं आर्टिकलशिप में था तो आई वॉज इन सातारा, नॉन सिटी प्लेस। तो वहाँ पे जो मेजोरिटी ऑडिट होते थे, वहाँ पे इन सिटी एरिया, इन डिस्ट्रिक्ट एरिया ऐसे होते थे। तो मैं जब भी मुझे आउटस्टैंडिंग ऑडिट मिलता था, तो मेरे सर जो है वो बोलते थे कि इसको भी ले जाओ, डोंट कीप इट इन ऑफिस, उसको भी पता चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं। तो दैट बहुत ही वाज, अच्छा। मेरे जो दोस्त थे वो भी मुझे मतलब दे अकम्पनीड मी एंड एवरी टाइम कि ये तुम्हें करना है, यू कैन डू इट। एवरीबॉडी वाज जस्ट कि मुझे पुश करते थे। कभी कभी मैं फिजिकली हैंडीकैप मोड में चला जाता था, दैट आई कॉल इट सेरेब्रल पाल्सी मोड, कि मुझे ये नहीं आता या फिर मैं नहीं करता। तो दे हैव यूज्ड टू पुश इट कि अरे तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो मैं करता था। तो बट स्ट्रगल तो हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि मतलब एक एक अपना माइंडसेट है कि कोई भी अगर फिजिकली चैलेंज है, तो वी अंडरस्टूड बाय आवर माइंड कि इसको ये नहीं आता होगा। मतलब द वे वी आर थिंकिंग, सम पीपल एक्चुअली वो बोलते थे कि अरे इसको लेके आए, उसको नहीं आता होगा ऑडिट, तो तुम क्या करोगे। मतलब देर इज अ मोर डिफिकल्ट वैलिडेशन प्रोसेस फॉर फिजिकली हैंडिकैप। वो तो मैंने बहुत एक जनरल माइंडसेट या एक सोसाइटी का परसेप्शन है जो वो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ा वहाँ पे। विराज जी कैसे बोल सकते हैं, कुछ लोगों का उल्टा होता है। बट आपके बॉस ने और आपके कलीग ने बहुत सपोर्ट किया, इंस्पायर किया कि यू कैन डू Yes, इट। और वो हिसाब से आपने बहुत काफी सीखा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एज वेल। yes. उसके बाद मेरे सर ने मुझे बोला कि सीए के साथ तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने एकदम से बोल दिया कि मैं सीएस करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, मतलब यू कैन डू इट, तो अच्छा है। तो मैंने सीएस भी कंप्लीट कर दिया। मतलब दैट वाज द गुड पीरियड ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, डिफिकल्टीज आए बट वी शुड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग ना। बहुत ही अच्छा। ओमकार जी, आपका आवाज है ना थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो आप मोबाइल थोड़ा सा पास में रख लीजिएगा। अभी तो बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब सुन पा रहे हैं हमको, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा आएगा तो बेटर रहेगा लोगों को। आपकी आर्टिकलशिप और आपकी सीए जर्नी के बारे में और कंपनी सेक्रेटरी की जर्नी में के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे की, आपका आपका कितने अटेम्प्ट लगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, और ये जर्नी के थ्रू आप एक सीए स्टूडेंट जो भी ये मैसेज देख रहे हैं और अभी फ्यूचर में देखेंगे जब हम हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, तो उनको एक मैसेज आप प्लीज दीजिए कि वो कैसे कर सकते हैं। ओके, पहले तो ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि सीएस जो मैं हुआ वो सातारा जैसे प्लेस में हुआ। उसमें कोचिंग की फैसिलिटीज जब तक मैं फाइनल में नहीं आया था तब तक नहीं थी। तो इट वाज प्योरली सेल्फ स्टडी बेस्ड। तो दो तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगा, हर एक के केस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। फर्स्ट तो आपको क्या कंप्लीट करना है ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। बिकॉज सीए या फिर सीएस जो है वो आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्स है। मतलब उसके पहले आपका इंस्टीट्यूट से बहुत कम नाता होता है। हमारे टाइम तो ऐसा था कि 6-6 महीने में हम जाते थे सीएस के इसकी वजह से। एंड उसके बाद आप करते हो। तो फर्स्ट योर टारगेट शुड बी देयर एंड देयर शुड बी ए कंसिस्टेंसी कि आपको कितने ग्रुप या फिर कितना सब्जेक्ट कितने दिनों में करना चाहिए। दूसरी चीज, आप सीए या सीएस जो भी या आईसीडब्ल्यू जो भी कोर्स है उसका डिफिकल्टी लेवल, प्रोफेशनल लेवल जान के स्टडी स्टार्ट कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी और के साथ हम एडमिशन ले लेते हैं एंड आई बिलीव कि एवरीबॉडी कैन क्रैक द सीए एग्जाम विद कंटिन्यूस स्टडी। तो उसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल देख के छोड़ देते हैं। तो वैसा मत करें, परसिस्टेंसी रखे, एवरीबॉडी कैन क्रैक। एंड थर्ड थिंग कि आपका स्टडी जो है वो प्रॉपर क्या बोलते हैं, टाइम बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये मतलब अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 सब्जेक्ट आपको प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करने चाहिए और रिवीजन के लिए भी टाइम देना चाहिए।
It is a basic rules actually, but many of CA students, whatever I interacted, they forget this because they think that CA and CS on professional exam are just like a university exam. राइट। तो आपका कैसे हुआ था, कितने साल में वो आपने कब स्टार्ट किया था और कब कंप्लीट किया? अच्छा, मेरा इंटरेस्टिंगली मैं भी सेम बकेट में था, तो इंटरमीडिएट जो है उसको मुझे बहुत टाइम लगा, 4 अटेम्प्ट लगे, बट फाइनल में मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सीए और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस इंटर और फाइनल क्लियर किया। जैसे मुझे ये ग्रास्प आ गया कि मतलब I also have to discipline my study and to your point study is required. Then मेरा easily and interestingly last attempt में मेरा हर एक ग्रुप हर एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन था। बहुत ही अच्छा। आपको मतलब अटेम्प्ट्स भी लगे, जैसे नॉर्मल मतलब सबके साथ होता है कि आप भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, फिर भी आपने हार नहीं मानी, अटेम्प्ट्स लगे या कुछ भी मुश्किलें आई उसके बाद भी आपने किया। आपका एक चीज मुझे पता था कि आप अभी जो जॉब भी कर रहे हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, और उसके पहले मतलब जब 2011 में आप सीए बने, यू वेंट फॉर द इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट, जो इंस्टीट्यूट ने एक सुविधा दी हुई है कैंपस प्लेसमेंट की, वहां का आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करिए। वो मुझे एक आपकी लाइफ का टचिंग मोमेंट लगा है कि आपको मतलब बहुत सारी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी थी, तो वो एक बार आप आपके आवाज में बताइए सारे हमारे ऑडियंस को। एक्चुअली क्या हुआ कि 2000 थोड़ा सा मोबाइल नजदीक रखिए ना ओमकार जी प्लीज। हेलो हेलो, हाँ परफेक्ट। हाँ એટલે मोबाइल नीचे रखिए, लेकिन थोड़ा सा आवाज मोबाइल का बढ़ा दीजिए। हाँ ओके, यस। जब मैं 2011 में क्वालिफाई हुआ, तब दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सेल्फ प्रैक्टिस और जॉब। तो आई वांट टू डू जॉब ओनली बिकॉज मुझे लगता था कि पहले कुछ साल कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने के बाद वी कैन डिसाइड कि हमको क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने मुंबई और पुणे दोनों सेंटर्स भरे थे। तो जब ये क्वालिफिकेशन मतलब ये जब इंटरव्यू की बात आई या शॉर्ट लिस्टिंग की बात आई, तब ऐसा होता था कि बहुत सारे, बिकॉज दैट ट्रेंड वाज दैट कि इंस्टीट्यूट पास बहुत सारे लोग होते, 10% 15%। उसी आई थिंक उसी अटेम्प्ट से ये स्टार्ट हुआ कि इन 2 डिजिट्स द पासिंग परसेंटेज इज गेटिंग। तो एंड ड्यू टू माय फिजिकल डिसेबिलिटी लोग बोल रहे थे कि तुम गवर्नमेंट कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एसोसिएशन, इसमें ही ट्राई करो। यू डोंट गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट बिकॉज कहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ तुम्हारा तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो when I got shortlisted for 6 public as well as private companies, I was very happy कि मतलब देयर इज इंस्टीट्यूट का भी कांग्रेचुलेशन कि वहाँ पे कोई ऐसी पार्शियलिटी नहीं है कि यू हैव टू स्टे इन फिजिकली हैंडीकैप रो एंड ऑल दिस थिंग्स। बट उसके बाद 6 जो कंपनीज है वो टॉप मोस्ट कंपनीज है, इवन लाइक PwC एंड ऑल, लाइक HPCL। दैट वाज वेरी गुड मोमेंट बिकॉज क्या इतने सारे के सालों के मेहनत के बाद आपको अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू चूज। बिकॉज फिजिकली हैंडीकैप का मैंने ऐसे देखा है कि दे डोंट गेट चॉइस, दे जस्ट गेट कि ये करो, मतलब फॉर एग्जांपल कोई जॉब करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो किसी के साथ, एंड यू हैव टू शेयर द हैप्पीनेस, मतलब you have to share the compensation with everybody, but you don't get choice for that point. I think that was the breakthrough point because physically handicapped getting a choice to choose from 6 top companies is not a normal thing. I think जो physically handicapped है वो जो try कर रहे हैं वो understand कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा choice। राइट राइट, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हो आप। तो जनरली ऐसे होता है कि कैंपस में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और बहुत कम कंपनी होती है। तो यहाँ पे तो आपके लिए उल्टा होता है कि आप एक कैंडिडेट को 6 कंपनीज सिलेक्ट कर रही थी और आपने कोई भी बेनिफिट भी नहीं लिया एज अ फिजिकली चैलेंज पर्सन का कि आई डोंट वांट टू टेक दैट बेनिफिट, यू हैव गिवन अप दैट बेनिफिट एज वेल, आई वांट टू बी अ नॉर्मल कैंडिडेट काइंड। तो वो जर्नी एक बार आपके थॉट में कैसे आया सबसे पहले?
कि you don't want to take the benefit. एक्चुअली क्या होता है कि HPCL इफ यू सी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी, तो लोगों को लगता है कि 3% कोटा से आपको जॉब मिल गई होगी। तो मैंने मतलब लोग तो बोल रहे थे कि अरे तुम HPCL ज्वाइन कर लो, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इट इज अ गुड कंपनी। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था अंदर, जब मेरा शॉर्टलिस्टिंग हुआ, इंटरव्यू हुआ, तो एक रिस्पेक्टेड पर्सन थे वहां पे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पहले ही हमें बता दिया, तो मुझे बता दिया कि देयर इज नो वैकेंसी अंडर 3% कैटेगरी, यू हैव टू कंपेयर टू इट नॉर्मल पर्सन, सो डोंट गिव एन इंप्रेशन, वी विल बी अ सॉफ्ट ऑन यू। First line of the interview was that कि मतलब you will get 3% quota and what you will do and or nothing, you have to compete with them, and even selection के बाद भी मुझे ये बोला गया कि you are selected under general category, so if you want to choose our company you have to work as a general category, not a physically handicapped. Even in the office the people are not very मतलब very soft on the physically side. My previous boss was also facing challenges. He is a role, he can be said as a role model for physically handicapped. He has become a DGM now, but only on a general category basis. So you are also a role model for many in the company as well as entire India or entire CA community everywhere. Basically, I would like to say. I am grateful for that. Yes. So would like to now request Vishal Bhai, our co-host, to come on screen and discuss the journey about Omkar ji. Vishal Bhai is waiting. Omkar ji, one thing I guess Virag Bhai missed, I would like to cover that point. You received recognition and felicitation from the President of India. So how was that moment? How was that feeling? How CA was an achievement in itself, but receiving recognition from the President. So how was that feeling altogether? सर मैं पहले मतलब ये तो बताऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। जनरली ये देखा गया है कोई भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है या फिर नॉर्मल पर्सन है, एक PSU का जॉब मिलने के बाद दैट ग्रोथ स्टॉप्स। तो आवर कंपनी विथ कोलैबोरेशन ऑफ CA इंस्टीट्यूट स्टार्टेड MBF कोर्स, मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस। तो मैंने CA होने के बाद पढ़ाई छोड़ी नहीं, MBF किया, DISA किया, CAPM किया, मतलब that is a differentiator I think, because physically handicapped हो या नॉर्मल हो, एक PSU का जॉब मिलते ही रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी हमने को क्या करना है, अभी तो हम जॉब करेंगे एंड रिटायर्ड हो जाएंगे, दैट इज द मेंटालिटी। तो ये एक डिफरेंशिएटर है। एंड सेकंड थिंग, जो नेशनल अवार्ड आप जो बोल रहे हैं वो क्या मतलब व्हाट इज अ नेशनल अवार्ड, आई विल जस्ट ब्रीफली से कि नेशनल अवार्ड जो है वो हर साल अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है डिमांड्स मतलब आस्क फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। So my company has generously recommended me for that award, and that is also a best employee award. So best employee award जो जब मुझे मिला था, मतलब first CA was a very big achievement I can say, and because that is the independence for a person like me, and the national award is a crown in a jewel. उस टाइम जब मैं स्टेज पे था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, because if you share the dais with the President of India, nothing like that. तो सारे सपने पूरे हो गए ऐसा लग रहा था। And that selection process, if you see, that is a secretary committee selects, so there is no partiality or there is no matlab someone recommends and you get the award like that, and all the firms, public, private, everybody can compete, and it is a very tough selection committee. I got the award in the second nominated. Firstly my company nominated, I got rejected, but on the second time I got best employee award. Very well said regarding
in terms of education, qualification. We also have Virag with us. He was also from PSU. He has also achieved so many degrees, CA, CS, CMA, LLB, and whatnot. Even I have forgot the list. So, Omkar ji, when you spoke about academics, what more studies, in case you are pursuing anything? And also, I would like to know from you how is your approach as an employee? Because what we have mentioned, or what rather you have mentioned to us, is you have received so many employment related awards and everything. So, what is your mindset while performing? Omkar, just before you answer, I would like to request all our attendees, if anybody has any question, we just post in the question tab. We will unmute you and you can directly ask as well. We have already few questions from Umaji. Dipti Jain is also there. She is our regular attendee as well. So we will unmute them after this your answer. Over to you, Omkar ji. My approach, matlab, my approach you can get in a one word. This April I got promotion as a manager. Wow. So I think what success says about the work you can understand. But my approach is towards work is getting the best work, whatever is assigned to you, and understanding and giving the best to the company and to the senior. And I am working in a team. It is a very extremely qualified, extremely intelligent team. So I have to give my 100% for the team also. So that is my approach. Where I personally believe in a positive approach in everything. So that reflects in my work also. Omkar ji, in terms of education, you have achieved so many degrees. So what made you pursue these degrees? And in case you are pursuing anything more, we would like to know on that. Yes. Firstly, CACS. So I have pursued CS along with CA because I have love for corporate law. So Okay. I just love the law per se. I found out law, legal and legal definitions, legal subjects, legal cases, etc. But second motivation was that कि सिर्फ CA पे campus placement में ज़्यादा अच्छा job नहीं मिलता, you have to do something extra, तो CS भी Yes. कर लो, because you are that was the basic motivation actually, such बोलना चाहिए. And second, MBA, DISA, and now I am pursuing CPA USA. So Oh, CPA wow. USA because I want to know about the other countries' laws and regulations. I just enrolled for CPA and will be giving an exam. But due to this pandemic, it is getting delayed. But I will complete. Very, very, very nice and rather very motivating for everyone to pursue more studies and explore more career options. With your permission, Virag bhai, if we can take up the questions from the participants. So there are appreciation from the participants at present. Very proud of you, Omkar, from CA Uma Mahadevkar Madam, and many others. Vinod De Silva ji also. Thank you. I think Omkar ji is knowing Vinod ji. We have unmuted you, Uma Madam and Dipti Jain. If they are online, they can talk with our super achiever. Or anybody want to talk, they can post in the question tab, then we will unmute them. So before anybody is coming, yes, Uma Madam, please. Yeah, I'm very proud of Omkar. He's my nephew, and I came to know about it a little later when he had already achieved, and that's why I'm very proud. He did not expect any help from anyone, and I wish that he continues this tradition of high achievement in his life. My best blessings and God's blessings for him. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Madam. Omkar ji, you want to say anything to Uma ma'am? Yes, thank you. Thank you for the appreciation. And No, Omkar, you don't have to say thank you to me. I'm very proud of you and of your parents who have guided you so well in life. This is a lesson for all the parents for
many of them children are really not physically handicapped but mentally handicapped, I'll say, because of demanding parents. Thank you. And you never say thank you to me, beta. All the best. Thank you so much, madam. We have a Nandkishore Toshniwal ji, CA Nandkishore Toshniwal ji. Sir is saying almost same thing. Very proud of you, Omkar the great, excellent, self-dependent. Nandkishore ji, we have unmuted you. You can talk with the Omkar ji. And we have also unmuted Dipti Jain if she is there. I am there. Hello. Yes, Yes, Dipti. Dipti, Hello. please. Yes. It was excellent session, and Omkarji, you are such an inspiration for all of us. Like many normal people also think that we are unable to do that. CS courses are so much difficult for normal people with all the intelligence which God has gifted them, and you have achieved something very extraordinary. So you are an inspiration to everyone who think that things are difficult in their life, and you are a live example that everything is possible in this world. Only a strong determination, focus is required for achieving anything in life. Thank you. Thank you. Thank you, Dipti ji. Thank you so much, Dipti. Thank you. Before we go to the last question to Omkar ji, would like to request Omkar ji to request Omkar's ji parents to come on screen and to have a say few words for Omkar ji, एक minute. because they are very close and they have seen the entire journey. Yes, please. Yes, एक minute. They are coming. Yeah, okay. So meanwhile, we can take that question, Omkar ji. What is your message to the all the entire CAs are there? Around 3,15,000 CAs are there. So what message you want to give to all CAs? Because you already given message to CA student. So what is the message for who has already become CA? Like me, Vishal, Dipti, everybody. सर मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि सीए के लिए सीए जो It's Virag, it's a very good question. Virag, very nice. आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया है, हम सबको किसी को नहीं बुलाया है सर. तो आप भले बड़े आपको नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक मैसेज दे दीजिए कि मतलब हमें क्या करना चाहिए कि वी कैन नॉट, मतलब हम कभी भी नर्वस ना हो लाइफ में, या पॉजिटिव एनर्जी रहे हमारे में, जैसे आप में रहती है हमेशा. आप हमेशा जैसे अभी भी पूरे शो में आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है. सर ये मैं बोलना चाहूंगा कि देयर इज मतलब इन दिस कोरोना पैंडेमिक डोंट लूज होप. योर बिजनेस. मोबाइल थोड़ा सा पास रखिए प्लीज. हाँ, इन दिस कोरोना पैंडेमिक डोंट लूज होप. योर बिजनेस, योर सर्विस, योर फैमिली विल बी सेफ, एंड प्लीज कीप योर पॉजिटिव साइड शाइनिंग. कुछ तो अच्छा कीजिए कि मतलब जिससे आपको लोग जान सके या आप खुद को जान सके. इतना ही मैसेज दे सकता हूँ. हाँ, थैंक यू ओमकार जी. Thank you, Omkar ji. Thank you. हमारे साथ सचिन निरगुडकर जी है. सचिन जी, हमने आपको अनम्यूट किया है. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक विद अस. Can you hear me now? Yes, Sachin ji, you're audible. Yeah. Very good morning to everyone, and I'm a relative of Omkar and wish to share a few things which you might not know. From childhood, I have seen this as a child, very determined, and he's very self-driven. Achieving these awards is not someone guided him or someone told him to do, which I feel is a very big thing. I mean, Shri Modi ji now saying Atmanirbhar, but he has been self-driven for long. And a good example of this was in one of the Standard Chartered marathon. He participated and he won some medal there. I don't really remember the exact year, but imagine, he walked a couple of kilometers with his father because he was determined to do that, and he was able to complete the race, and it was appreciated by Standard Chartered marathon people. And one more aspect of his life is he's a very good reader. He reads a lot of books, spiritual books, and maybe that's the reason he's so quiet in his mind. He's not fluctuating.
and that also gives him an ability to think of society. His blood donation, what you mentioned, is one of the areas where he thinks. And I personally feel his job in HPCL is also very demanding. I think he's related to SAP implementation, and he's working in that area. So it is not a very simple administrative job, but a very challenging and mind-provoking job. And I wish he will be able to guide people in future. And next 10 years, when we meet him again, he will have done many more things which we can discuss. And God bless him with all the health, wealth, and happiness. And all the best, Omkar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sachin ji. Absolutely, whatever you told, we totally agree. I also myself part of the public sector undertaking before 1 year or so. I also know that it's not like government, environment, or what we have in our mind. It's obviously a corporate job, thorough job. It's obviously demanding nowadays. One cannot take it a very lightly point of view. So it's absolutely right. Apart from that, everything is doing. SAP implementation is very great thing, and it's required a lot of that. We welcome Omkar's father. Namaste, Uncle ji. Namaste, Auntie ji. We welcome on our show. हम आपको बहुत ही सैल्यूट करते हैं, मैं विशाल और सारे जो भी अटेंडेंट्स की तरफ से, कि आपने ओमकार जी को बहुत ही अच्छे से मतलब जो आज ओमकार जी है अभी, वो आपने उनको पूरा बनाया है। तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ओमकार जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए सारे अटेंडेंट्स को। सर, can they use Marathi words? मराठी में भी चलेगा सर, मराठी में भी चलेगा। हिंदी and Marathi will do both. मराठीत चालेल? चालेल चालेल सर, चालेल सर. आज तारीख आहे 19 जुलै 2020 आणि मला आठवतंय 19 जुलै 2012 11 ह्या तारखेला सीएचा रिझल्ट लागला. त्यावेळी त्याचं सीएस चं ट्रेनिंग चालू होतं. ते ट्रेनिंग मध्ये हॉल मध्ये तो बसतो, 40 एमएसओपी चालू होतं आणि आम्ही स्टेअर केस मध्ये बसून राहिलो होतो आणि कधी रिझल्ट येतो ह्याची वाट पाहत होतो. आणि 10-10:30च्या दरम्यान तो रिझल्ट आला. मी त्यातले जे प्रोफेसर होते त्यांना सांगितलं, त्यांनी मला स्वीट्स मागितलं, मी त्यांना स्वीट्स दिले आणि नंतर मला कळलं की टोटल 40 विद्यार्थी त्या सीएस ला ट्रेनिंगला आले होते. त्यापैकी 2 जण फक्त सीए करत होते आणि त्यातला एकच फक्त हा ओंकार पास झाला आणि ती दुर्दैवाने हे झाली, फेल्युअर झाली. तर इतकं टफ असून सुद्धा म्हणजे अभ्यासक्रम सीएसचा सीएचा त्यांनी केला जिद्दीने. आम्ही आता मदत केली, आमचं कर्तव्यच आहे ते, पण खरी जिद्द त्याची. जी जी, त्याची आई बोलते. जी जी. ओंकार आमचा पहिल्यापासून समंजस आहे आणि प्रत्येक गोष्ट करून बघण्याचं त्याला असं वाटतं की आपण हे करून बघितलं म्हणजे आपल्याला जमेल का. त्याने त्याप्रमाणे जिद्दीने सगळं सीए आणि सीएस दोन्ही केलं. मला त्याबद्दल खूप अभिमान आहे. हा, आणि सुरुवातीला मी त्याला एक नगरपालिकेच्या शाळेत घेऊन जात होते, कडेवर घेऊन जात होते आणि तेव्हा त्याला चालता येत नव्हतं. तर 4थ्या मजल्यावर त्याला घेऊन जायचं आणि दिवसभर तिथे बसायचं. 5 वाजता घरी घेऊन यायचं. पण तिथले सगळी मुलांनी त्याला खूप मदत केली. खूप म्हणजे घरी येऊन सुद्धा सगळी मुलं खेळायची. शक्यतो आम्ही त्याला मुलांमध्ये असं रमवायचो, मुलांमध्ये खेळवायचो, नॉर्मल मुलांमध्ये. त्यामुळे तो पुष्कळ पुढे आला आणि पुढे मग आम्ही चांगल्या शाळेत घातलं त्याला 5वीत आणि त्याच्यानंतर मग तो थोडासा करायला लागला सगळं. राईट. चालेल, ठीक आहे सर. एक हकीकत सांगतो, त्या म्युन्सिपाल्टीची जी शाळा होती ते सगळे गरीब लोक होती. म्हणजे त्यांच्याकडे ड्रेस सुद्धा नसायचे, पुस्तकं नसायची, काहीच. म्हणजे त्या म्युन्सिपाल्टीच्या पण ही सगळी मुलं खूप मदत करायची याला. आम्ही त्यांना घरी बोलवायचो, पुस्तकं द्यायचो, वह्या द्यायचो.
खाण्याची सुद्धा त्यांची एक परिस्थिती बिकट होती. व्हाट दे आर सेइंग ना कि जो नॉर्मल स्कूल जो होता है, जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, वहां पे जो बच्चे होते हैं दे आर नॉट, it is seen that कि normally they are not cooperative or get you. ओमकार जी कैमरा आपके साइड ले लीजिए प्लीज. What they are saying ना कि in normal schools the children are not very cooperative or take you in their group. Not cooperative or kind of, but ये म्युनिसिपल स्कूल था और वो बच्चे ने आपको बहुत सपोर्ट किया. They have no equality or superiority complex कि ये कौन है या जस्ट कि तुम खेलो, तुम मेरे साथ खेलो, तुम ये करो, तुम कर सकते हो. That was the हाँ ये मतलब कि nobody was giving in to my disability actually. Yes. नहीं हमें हमारे लिए तो उन्होंने जो आपकी पेरेंट्स ने और खास करके आपकी मदर ने आपके लिए जो किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है. हम उनको सलाम करते हैं, दोनों हाथों से सलाम करते हैं. और उन्होंने जो आपको स्कूल लेके जाते थे और वहां पे बैठ के 5 बजे तक बैठना, और उन्होंने जो भी उनका शौक वगैरह नहीं करके, नहीं देख के पूरा आपके लिए जो मेहनत किया है वो हम महसूस भी कर पा रहे, फील भी कर पा रहे. तो उनको बहुत ही सलाम है और उनको बहुत ही धन्यवाद है. यस विशाल भाई. यस विशाल भाई. यस जैसे सर ने मतलब इनके फादर ने कहा ओमकार जी के कि वो बहुत जिद्दी थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, उनको काफी कुछ अचीव करना था. ये तो एक फैक्टर था, बट जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्टर था बिहाइंड द कर्टन, जो आपकी मदर आपके लिए इतने सारे आवर्स वहाँ पे बैठे रहते थे स्कूल में ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो. उन्होंने खुद का पर्सनल टाइम या फिर जो टाइम में वो रेस्ट कर सकते थे, कुछ और काम कर सकते थे घर का, वो सैक्रिफाइस करके आपके लिए वहाँ पे रुके रहे. इट्स अ बिग टास्क. जैसे आपके फादर ने भी कहा कि इट वाज दैट ड्यूटी, मोर देन ड्यूटी इट वाज, आई वुड से कि तो प्यार था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से काफी कुछ था. एंड या अगेन हैट्स ऑफ टू देयर कमिटमेंट एंड जो उन्होंने एफर्ट्स लिए आपके पीछे. आज आप जो हो, आप जो मैनेजर बने, आपने इतने सारे अचीवमेंट पाए, आपको इतने सारे रिकॉग्निशन मिले हैं. एवरीथिंग वुड इज बिकॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देम. So hats off to them. Thank you. ओमकार जी, हम ये लॉग ऑफ करें, हम यहाँ से आपसे विदा लें, उसके पहले हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपका एक मैसेज पूरे सोसाइटी के लिए क्या रहेगा? पूरे सोसाइटी के लिए अभी तो आप बहुत बढ़ा रहे हो. समाज के लिए आपका मैसेज एक कि आपने ये अचीव किया है, आपको मतलब प्रेसिडेंट ने बुलाया है और बहुत सारे अचीवमेंट मिले हैं. आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो अभी, जो बहुत ही डिमांडिंग रहता है ऑब्वियसली. डिस्पाइट ऑफ यू आर गिविंग बैक टू सोसाइटी थ्रू व्हाटएवर यू वे वांट टू डू, लाइक ब्लड डोनेशन आपने लास्ट 10 सालों से कंटिन्यूअस और इवन मोर अपने कर रहे हो. तो आप सोसाइटी को क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं सोसाइटी को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी डिसेबल्ड है, मेंटली है, फिजिकली है, उनको क्या आता है. थोड़ा स्लो आ रहा है सर. मैं क्या ये बोलना चाहता हूँ सोसाइटी को, जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, मतलब कोई भी है, मेंटली है, फिजिकली है या फिर कोई और है, उनको जो आता है वो आप देखो. वो नहीं आता है तो सब लोग देखते हैं. जो आता है वो देखो और उसका यूज कर सकते हो तो आप करवा लो. वो भी अचीव कर पाएंगे और आप भी अचीव कर पाएंगे. बहुत ही अच्छा. जो है वो देखो, जो नहीं है वो मत देखो. नहीं, जो नहीं है वो सब देखते हैं ना, आप अलग बनो. yes. थोड़ा इतना ही मुझे लगता है. बहुत ही अच्छा. और हम आपसे विश करेंगे कि आप अभी आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइफ में भी आपकी आप जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसमें भी आप सफल हो. आपको जल्दी से एक जीवन साथी मिले और हम भी आपको मतलब शुभकामनाएं दे रहे हैं इसी के लिए कि आप तो अच्छे से हो और आपकी लाइफ मतलब और भी कलरफुल हो जाए. सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये सुपर अचीवर कंसेप्ट, ये आप दोनों विशाल जी और विराज जी, ये और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. ये जो आपके 6-7 जो सुपर अचीवर है उनको भी ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ. और जो पैनलिस्ट है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया
और मेरे से 4 बातें की, इससे कोई तो एक दो जन तो पॉजिटिव इफेक्ट हो जाए तो आई विल बी हैप्पी। जी जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ओमकार जी। वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विशाल भाई फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। थैंक्स अ लॉट ओमकार जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आपने अपने डिफिकल्ट टाइम्स के, आपने अपने अचीवमेंट्स के, आपने अपने सोशल कॉज के बारे में क्या आपने इतना मोटिवेट किया है ओवरऑल एज अ आपके सीए स्टूडेंट को या सीए को या फिर सोसाइटी एज अ लार्ज। आपने मैसेज पास किया उनको कि आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स ना देखिए, रादर जो पॉजिटिव पॉइंट्स सब में होते हैं, इवन इन अ स्पेशली एबल दे आर मोर टैलेंटेड इन सम अदर वे, विच आई हैव नोटिस पर्सनली एंड विच इज फैक्चुअली करेक्ट। तो ये जो आपने मैसेज पास किया है, दिस विल रीच मेनी पीपल एंड थैंक्स अ लॉट ऑन बिहाफ ऑफ द फुल टीम इनिशिएटेड बाय विराग भाई एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग द मैसेज विद अस। थैंक्स अ लॉट ओमकार जी। थैंक यू थैंक यू सो मच। एक मैसेज है फ्रॉम सिद्धि पवार, फैमिली सो पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग टू। थैंक यू सो मच सर। तो ओमकार जी आपके लिए मैसेज है, आपकी फैमिली के लिए मैसेज है जो हमें लाइव ऑडियंस से मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल द अटेंडेes joining us. We can log off here and we'll meet next Sunday 11 o'clock with one more personality. So do join us there as well. Thank you so much all. Thank you once again. Thank you Omkar ji. थैंक यू।